Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, everyone. Welcome to the combined session of CC and SB, Chaitanya Charitamrita and Srimad Bhagavatam. So last time we started the first chapter of Chaitanya Charitamrita, and we were discussing Guru Tattva. Guru, the first chapter name is Guru, and I also told the meaning of Chaitanya Charitamrita, the life character of liberated personalities. That is the meaning of Chaitanya Charitamrita. So I explained that how, Chaitanya Charitamrita, Bhagavad Gita, Krishna says to surrender. Bhagavatam, Krishna shows how to surrender. And Chaitanya Charitamrita, Krishna, is about all those surrendered soul, liberated soul who have become liberated, and how do they act? What is their charitra? What is their character? What is their activities? So we'll be discussing today about the Guru Tattva. So Guru who is coming from Goloka Vrindavan. Guru is not an ordinary personality. First of all, we have to understand that any Guru we accept has to be a bona fide spiritual master. Any layman cannot become Guru. Right? Srila Prabhupada explains in his writings, and even the Shastra, it is said that one, it is illegal. It is illegal to become Guru, spiritual master, if one is unable to deliver the disciple. Illegal. So if you yourself are not liberated, you should not become a Guru. That is a Diksha Guru. Should not become. Don't try to take disciples and initiate them if you yourself are not liberated. So we have to find such a person who is liberated, who is not bound by the three modes of material nature. Only that person can liberate us also. जो खुद ही डूबा हुआ है समुद्र में ना भवसागर में, वो हमको कहाँ से liberate करेगा, right? So that has to be very, the most important thing in spiritual life is finding a right Guru. Actually, normally we cannot find a Guru. It is Krishna who gives us a Guru. We have to just be sincere and pray to Krishna that, oh Krishna, please send me some Guru. I want to know about the goal of human life. Atho Brahma Jigyasa. So unless and until we are, we have this deep desire, madness to know about God, to get out of this cycle of birth and death. Why are we suffering here? Why are we bound in this material world? Why do we suffer birth, death, old age, disease again and again? What is reincarnation? Why I have to take birth again? Why I cannot be happy permanently? Why problem comes? I don't want any problem, but they come. So why do I have to suffer? Why I've never done anything bad in my life. Even then I'm suffering. Why it is that? So unless and until we have these questions, and when we look for the answers to these questions, we should not accept a Guru. मेरे फादर ने बोला कि हमारा परिवार का गुरु है, चलो दीक्षा ले लो इनसे. उससे गुरु वो एक रबर स्टैम्प गुरु होते हैं, और आप भी एक रबर स्टैम्प डिसाइपल कहलाओगे. अरे मेरे फ्रेंड ने दीक्षा ले ली, चलो मैं भी ले लूं. अरे मेरे होता है ना हमारे परिवार में, जो परिवार के जो गुरु होते हैं उनको बोलते हैं गृहस्थी के गुरु, जो है ना सारे बहुत से लोगों के होते हैं, स्पेशली गुजरात में और महाराष्ट्र, ऐसा राजस्थान में देखा है मैंने. I've seen that people have their family guru who comes to the family occasions, he blesses, and then एक साथ में सब लोग बैठ जाओ, चलो दीक्षा ले लो सब. उनको दीक्षा का मतलब पता नहीं है, दीक्षा का उनको सीरियसनेस पता नहीं है. डिसाइपल मीन डिसिप्लिन. वो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, कुछ भी सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं. They are not interested in spiritual life, and yet they accept some guru. So if you do this way, then you'll be cheated, because and a guru who sees that अरे खाली number बढ़ाने के लिए I have to get disciples. Like I've seen, there was this one very
famous guru in India. So he used to give diksha. You know how he used to give diksha? No, you'll be surprised to know how he used to give diksha. On Purnimas, he used to, he in the audience there used to be like lakhs of people. So it will come, आज सो एंड सो 1 लाख डिसाइपल को दीक्षा देंगे. अच्छा, बहुत अच्छा. 1 लाख लोग सब पंडाल में बैठे हैं, गुरुदेव आते हैं. और लोग अरे कैसे दीक्षा देंगे, कैसे दीक्षा देंगे. और गुरुदेव जी खड़े हो जाते हैं आके सामने, और सब डिसाइपल्स उनके मैडनेस में they become ecstatic to see the guru. And then the guru takes a pipe होता है बड़ा पाइप, होली में पाइप आपने देखा होगा अगर जाना 90s में, how diksha was given by this so called big guru. पाइप लेते हैं, पाइप के अंदर से पानी निकलता है, पानी चालू करते हैं, और वो जो होता है ना, हम पाइप में से कैसे पानी सब पे फेंकते हैं, वैसे वो बड़ा पाइप ऊपर उनका क्रेन होता है, उस क्रेन में बैठते हैं और वो सारे डिसाइपल से पानी छिड़कते हैं, और आपकी दीक्षा हो गई. और डिसाइपल्स भी, अरे वाह, टुडे वी आर ब्लेस्ड बाय द गुरु. गुरु ने हमारे मर्सी की बारिश कर दी आज हम पे, और हम सब दीक्षा हो गए ना. एंड देन उन सब दीक्षा का ही हो गया, होली खेल लिया, और उसके बाद में वो एक पर्ची होती है, वो जाते हैं, पता नहीं किसकी पर्ची क्या है, जिसके हाथ में जो आया उसको वो नाम मिल जाते हैं. माता जी लोग का एक लाइन होता है, प्रभु जी का एक लाइन होता है, तो ठीक है, एक चीट होता है, ये चीट आपके हाथ में, ये आपका नाम, ये चीट आपके हाथ में, आपका, इसमें आपका मंत्र लिखा है. एंड वो दीक्षा चलती रहती है ऐसे. तो उनको पता नहीं है दीक्षा का मतलब क्या होता है. कभी ऐसी दीक्षा तो पानी से तो मैंने आज तक कभी दीक्षा देखी नहीं है, लेकिन होती है दीक्षा. आई हैव सीन. And if you don't know the name of that guru, I'll tell the name also. Asharam Bapu. No, Asharam Bapu and Murari Bapu, they used to give this how they used to do diksha like this, So ऐसे लोग इतने अनसीरियस लोग होते हैं जो दीक्षा ले लेते हैं, अनसीरियस गुरु, क्योंकि नंबर बढ़ाना है, नंबर लाखों में हमको करना है. तो चीफ दीक्षा. और फिर वो क्या होता है, वो सब डिसाइपल्स है, जाते हैं, चलो दीक्षा हो गई, अब चाय लाओ, चाय की दुकान ढूंढते हैं, वो चाय पीते हैं. चलो उनके परिवार, चलो अब भूख लग रही है, भोजन खाते हैं. तो बाहर कोई स्टॉल वो लगे होते हैं, प्याज लहसुन है, सब वो वही खा रहे हैं, वो वही. तो ये उनकी दीक्षा हो गई, ये उनकी दीक्षा हो गई. सो दिस इज नॉट दीक्षा. डिसाइपल मीन्स डिसिप्लिन. आपको धर्म के 4 पिलर्स तो फॉलो करने पड़ेंगे मिनिमम. एटलीस्ट यू हैव टू कम टू द ह्यूमन प्लेटफॉर्म फ्रॉम द एनिमल प्लेटफॉर्म. नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, मर्सी, क्लेनलीनेस, प्योरिटी, ये सब होनी चाहिए आपके अंदर. जब तक आपके अंदर ये सब नहीं होगा, दया और स्वच्छ, you're clean, you have compassion in your heart, you have purity in your heart, you are not, you don't cheat, you don't lie. जब तक ये क्वालिटी नहीं होगी, डिसिप्लिन, बेसिक डिसिप्लिन रहेगा, आपका दीक्षा लेने का कोई मतलब नहीं है. कुछ नहीं होने वाला है ऐसे दीक्षा लेने से. दीक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि आपने कोई दीक्षा ले ली और ऊपर से कोई आकाशवाणी से कोई इलेक्ट्रिक करंट आने वाला है आपके ऊपर, या गुरु में से आपके अंदर कोई इलेक्ट्रिक करंट आएगा और आपके अंदर एकदम आपको सरचार्ज कर देगा भक्ति से. ऐसा नहीं होता है. दीक्षा का मतलब ऐसा नहीं होता कि आपको सरचार्ज हो जाएंगे. दीक्षा का मतलब होता है कि इट इज योर सीरियसनेस टू फॉलो द सिस्टम, your seriousness to follow the parampara, your seriousness to follow the process. That is diksha. When you become serious, now I've had enough in this material world. I've done enough sense gratification. I've done enough eating, enough sleeping, enough mating, enough defending. Now I want to know the goal of my life. I want to get out of this circle of birth and death. जब तक आपके अंदर ये नहीं आए ना, strong desire, who am I? मैं कौन हूँ? Am I this body or am I something else? Am I mind or something else? जब तक ये सब क्वेश्चंस आपके माइंड में नहीं आए, don't approach a guru. Don't approach a guru. Just rubber stamp के बचपन में या हमारे परिवार में गुरु ने दीक्षा दे दी, चाहे वो कोई भी गुरु हो, दीक्षा दे दो, वो दीक्षा नहीं होती है. It is yours, Prabhupada, it is your seriousness that is real initiation, real diksha. My touch is simply a formality, Prabhupada said. It is your sincereness, your seriousness that is their diksha. So आप कितने सीरियस हो 4 नियम पालन करने के लिए, आप कितने सीरियस हो सुबह उठ के 16 माला जप करने के लिए, आप कितने सीरियस हो
प्रसादम खाने के लिए, भगवान को भोग ऑफर करके खाने के लिए, आप कितने सीरियस हो सेवा करने के लिए, साधना करने के लिए, साधु संग करने के लिए, सेशन अटेंड करने के लिए, देन यू आर क्वालिफाइड टू टेक दीक्षा। ऐसे नहीं कि है ना, ठीक है सब लोग ले रहे हैं, मुझे मुझे भी चाहिए। अगर सीरियसनेस नहीं है तो कोई काम नहीं आने वाली है। दीक्षा कोई करंट नहीं है कि आपको सरचार्ज कर देगा भक्ति से। दीक्षा एक स्टार्टिंग है, इनिशिएशन, इनिशिएट मतलब क्या होता है? इनिशिएट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनिशिएट? इनिशिएट का मतलब क्या होता है? टू स्टार्ट, या सो दीक्षा मीन्स स्टार्टिंग द स्पिरिचुअल लाइफ। You take a vow that yes, now I will start my spiritual life, I will end my material life, or gradually I want to end my material life, means I want to get detached from my material life. It is a starting point. Initiation doesn't mean कि भैया मेरा दीक्षा हो गया तो मैं लिबरेटेड हो गया। आधे लोग तो सोचते हैं कि दीक्षा मिल गया मतलब हम महान हो गए, लिबरेट हो गए। नहीं, दीक्षा मतलब अब मैं वाव लिया है मैंने कि अब मैं अपनी सीरियसली स्पिरिचुअल लाइफ को परस्यू करूंगा। और अगर हम नहीं करें उसके बाद में भी, तो उस इनिशिएशन का कोई मतलब नहीं है। ये आपका परमानेंटली डाउनफॉल या फॉल डाउन हो जाता है उसमें, एंड देन वेरी डिफिकल्ट टू कम बैक। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट वी हैव टू बिकम सीरियस, एंड देन व्हेन वी आर सिंसियर एंड सीरियस, एंड देन प्रे टू कृष्णा, oh Krishna, please give me a bona fide spiritual master. Now who is a bona fide spiritual master? A bona fide spiritual master is not someone, a layman who's sitting on the road with some bhiksha or something, is just, or who's sitting under some tree, or a bona fide spiritual master is not by you're not by your clothes. It is not by your clothes you can judge, oh he is a bona fide spiritual master, oh ये sannyasi है तो ये bona fide होगा. No, a bona fide spiritual master is one who is coming in a proper parampara. There are 4 paramparas from Lord Krishna: शिव परंपरा, ब्रह्म परंपरा जिसको रुद्र परंपरा बोलते हैं, रुद्र परंपरा, ब्रह्म परंपरा, लक्ष्मी श्री परंपरा एंड कुमार परंपरा। ये 4 बोनाफाइड परंपरा है, कृष्ण से आ रही है। इसके अंदर हमको गुरु का सर्च करना है, कहीं पर भी जाके नहीं। When you want to get admission in school and college, you go and search for an affiliated school or college to the board or to the state board or the center board. You don't just go to any lay, जिसी ने बोर्ड लगा के रखा है कि आओ मेरे स्कूल में बैठो। ऐसे कोई स्कूल में हम जाके नहीं बैठते, हम मालूम करते हैं ना कि वो स्कूल बोनोफाइड है कि नहीं है। बोनोफाइड ही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप लिंक नहीं है आपका, जब तक पावर हाउस से आपका कनेक्शन नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी का, तो आप कितने बटन लगा लो अपने घर में, कितने अच्छा फैंसी लाइट्स लगा लो, कितना ही फैंसी वार्स लगा लो, यदि आपका कनेक्शन वो पावर हाउस से नहीं है तो आपके घर में लाइट आएगी क्या? फैन चलेगा क्या? एसी चलेगा क्या? जब तक वो पावर हाउस से कनेक्शन नहीं है, आपके यहाँ पे एसी चलेगा, आपके यहाँ फैन चलेगा, लाइट चलेगा, कितना ही एक्सपेंसिव एसी लगाओ, टीवी चलेगा, फ्रिज चलेगा, 2 लाख का फ्रिज लेके आए हो, लेकिन कनेक्शन वायरिंग सब कुछ है, प्लग भी है, लेकिन इलेक्ट्रिक पावर हाउस जहाँ से जनरेट होती है, पावर सिटी पावर जहाँ से इलेक्ट्रिक जनरेट होती है, वहां वो उससे आपका कनेक्शन नहीं है, तो क्या होगा? कुछ भी कर लो, नहीं होने वाला, नहीं आएगी लाइट ना। टीवी नहीं चलेगा, एसी नहीं चलेगा, फ्रिज नहीं चलेगा, लाइट नहीं चलेगा, पंखा नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। तो कनेक्शन होना चाहिए। इसी प्रकार एक परंपरा है जो कृष्णा से कनेक्टेड है। जब तक इस परंपरा से आप ज्ञान नहीं लोगे, नॉलेज, इस परंपरा में गुरु को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक आपका बत्ती का बल्ब नहीं जलेगा। होता है ना, एड था, दिमाग की बत्ती जलाना, दिमाग की बत्ती, हार्ट की बत्ती जलाना, तो वो ना हार्ट की बत्ती जलेगी ना दिमाग की बत्ती जलेगी, अब तक वो कनेक्शन कृष्णा से नहीं है। इसीलिए बोनाफाइड, इसीलिए परंपरा बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, दिमाग की मेंटोर है क्या? अच्छा, हाँ, दिमाग की बत्ती जलाना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 परंपरा है। तो आप किसी के पास में भी जाओ तो उनको पूछो कि आप कौन से परंपरा से हो, आप कौन से स्कूल ऑफ थॉट से हो। इट्स अ स्कूल ऑफ थॉट, ऐसे नहीं है कि कहीं से भी मिल गया। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड फिजिक्स, यू हैव टू गो टू अ फिजिक्स प्रोफेसर।
If you want to understand mathematics, you have to go to a mathematics professor. Want to understand history, you have to go to a history professor. I want to understand history, and if I go to a physics professor, वो मेरे को पढ़ा देगा क्या? Huh? Will a history professor teach me physics, or will a physics professor teach me history? हाँ, बताओ. मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट सीखना है, मैं सिंगर के पास चले जाऊँ, गाना सिखाने वाले प्रोफेसर के पास सीख जाऊंगा मैं. लेकिन हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया में जिसने ज्ञान डाला वो हमारा गुरु बन गया. अब उसके पास में कौन से स्कूल ऑफ थॉट से उसने दीक्षा लिए, शिक्षा ली, हम कभी मालूम नहीं करते हैं. बस किसी ने वीडियो बनाया और हमको अच्छा लगना चाहिए, थोड़ा हमारे दिमाग को, क्योंकि हमारे ईगो को सेटिस्फाई करना चाहिए, बस वो हमारा गुरु बन गया. उसके बाल इतने अच्छे हैं, वाह, जब वो चलते हैं, हाँ, वाइट ड्रेस में लंबे लंबे बाल के साथ, गॉगल्स पहन के, तो हवा में उनके बाल उड़ते हैं. अरे ये गुरु है मेरे, गुरु बना लिया क्योंकि वो अच्छे दिखते हैं. ये गुरु देखो कितना अच्छा बाइक चलाते हैं, हाँ, इतना हार्ली डेविडसन इतना मस्त चलाते हैं, और अच्छे फैंसी कपड़े, गॉगल्स पहनते हैं, एकदम मॉडर्न गुरु हैं. तो चलो यही गुरु एक्सेप्ट कर लो. हार्ली डेविडसन चलाने वाले गुरु को एक्सेप्ट कर. ओ ये गुरु, ये इतने प्राचीन इससे हैं, लाइन ऑफ थॉट से हैं, लेकिन क्या वो परंपरा से है, वो मालूम करना जरूरी है. प्राचीन की भी 2000 साल पहले की भी हो सकती है, लेकिन दैट इज नॉट परंपरा. परंपरा मीन भगवान से जुड़ना, पावर हाउस से. तो क्या कृष्णा से जुड़े हुए हैं? कृष्णा इज द लेटेस्ट अवतार. सो जो परंपरा है, इट हैज टू बी कनेक्टेड विद कृष्णा. जब कृष्णा ने जब भगवत गीता बोली थी, तो 4 लोगों को भगवत गीता कृष्णा ने बताई थी अर्जुन से पहले. ब्रह्मा जी को जब कृष्णा ने ज्ञान दिया था भगवत गीता का, तो ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे. दैट टाइम ब्रह्मा दे कुडंट सी एनीथिंग, ही सेट इन मेडिटेशन. दैट टाइम कृष्णा initiated him with the Om's level, and in the from the fruit of Krishna, the whole Vedas were revealed to Brahma in his heart. So ब्रह्मा जी को, शिव जी को, लक्ष्मी को और 4 कुमार को, इन 4 जन को वेद का ज्ञान दिया था, और उनसे परंपरा चालू हुई है. तो लास्ट टाइम आई एक्सप्लेन्ड कि व्हाट वी आर टॉकिंग राइट नाउ हियर, अ पर्सन आउटसाइड कैन जस्ट ओनली इंटरप्रेट, स्पेक्यूलेट कि हम क्या बात कर रहे हैं. He will never understand कि क्या बात कर रहे हैं. What mood I am talking in. There can be different moods. Hey, I'll kill you. Hey, don't do. Or I can say this angrily. I'm going to kill you. You don't make nuisance here. Or, अरे यार, what you are doing? I'll if you continue, I'll just kill you. Like in a joking way, I can say. Okay, but transcript में क्या आएगा? Gauranga Sundar said he is going to kill. गौरंग सुंदर कोलन है, आई विल किल यू. अब उससे आदमी कोई पढ़ेगा तो बोलेगा, अरे यार गौरंग सुंदर तो मर्डरर निकला, हाँ, टेररिस्ट निकला, ही इज टॉकिंग ऑफ किलिंग. बट गौरंग सुंदर ने जोकिंगली बोला आई विल किल यू. बट जो अटेंड कर रहा है उनको पता है मैंने किस भाव में बोला. बट जो अटेंड नहीं कर रहा है वो खाली इंटरप्रेट करेगा, अरे गौरंग सुंदर ने शायद ये कहीं तालिबान से जुड़ा हुआ नहीं है, या कि कोई सनातन संस्था, हिंदुत्व की संस्था जुड़ा हुआ तो नहीं है, या ये कोई नहीं, ये किलिंग की बात कर रहा है. अरे बाप रे बाप, इस पे केस करो, अरे सोशल मीडिया पे देखो ये गुरु बोल रहा है किल करेगा ये, हाँ, ये सब चालू रहेगा स्पेकुलेशन. नहीं, बट जो अटेंड कर रहा है ही नोज द कॉन्टेक्स्ट कि किस कॉन्टेक्स्ट में बोला. तो बाकी के लोग स्पेकुलेट कर सकते हैं, उस चीज को इंटरप्रेट कर सकते हैं, पर उनको रियल कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आएगा. इसलिए परंपरा ही होती है कि परंपरा में कृष्णा ने किस कंटेक्स्ट में अर्जुन को बोल रहे हैं. एक ही वर्ड की हमने श्रीमद् भागवतम में आएंगे तो हम आत्माराम वर्स यूज स्टार्ट किया है, तो उसमें हमने एक आत्माराम वर्स के 7-8 मीनिंग्स, एक ही शब्द के 7-8 मीनिंग्स. तो कौन सा मीनिंग को यूज करना है, ये कोई डिक्शनरी से मालूम नहीं पड़ने वाला है. ये कोई गुरु के पास जाओगे तो, नॉर्मल गुरु के पास जाओगे तो मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी 7 मीनिंग है, 8 मीनिंग है. तो वो सेंटेंस में कौन सा मीनिंग यूज करना है कैसे पता चलेगा आपको? ये कोई इंग्लिश नहीं है, हिंदी नहीं है कि आप ऐसे समझ लोगे. यू हैव टू नो द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, कंप्लीट कंटेक्स्ट, कंप्लीट मूड ऑफ द स्पीकर. एंड दैट इज व्हाई दिस परंपरा, बिकॉज इन परंपरा जो डिसाइपल होता है उसको गुरु बोलता है कि ये कंटेक्स्ट था,
ये मूड था, अपनी कमेंट्री में बताते हैं, और फिर वो डिसाइपल उसको इमुलेट करके फॉलो करके अपने डिसाइपल को बताता है. दिस इज द रीजन व्हाई दिस चेन इज कृष्णा कम. अदरवाइज कृष्णा अपने गोलोक छोड़ के एवं परंपरा प्राप्त करने क्यों आएंगे? अगर ये परंपरा कोई भी यू हैव टू अंडरस्टैंड, कुछ इसको सोचो, थोड़ा कंटेम्पलेट करो कि अगर परंपरा कोई भी चालू कर ले, है ना, ये वेद पढ़ के, तो कृष्णा परंपरा करने वापस क्यों आएंगे रीएस्टैब्लिश करने? कृष्णा क्या बोलते हैं फोर्थ चैप्टर में? हाँ, कृष्णा क्या बोलते हैं फोर्थ चैप्टर में? नहीं, द सेकेंड वर्स, the supreme science was thus received through the chain of disciplic succession. Chains. And the saintly king understood it in that way. उसी वे में समझना है, उस चेन में. But in course of time the succession was broken, टूट गया. And therefore the science as it appears to be lost. Then Krishna बोलते हैं, this very ancient science of relationship with the supreme is today told by me to you, because you are my devotee as well as my friend. Therefore you can understand the transcendental mysteries of this science. तो कृष्णा इस परंपरा को रीएस्टैब्लिश करने आ रहे हैं. अगर ये परंपरा कोई भी उठा के बुक में ना, खाली वेद तो थे, all the Vedas were there when Krishna was there, all the Puranas were there when Krishna was there. The Itihas, why Krishna saying it is lost? Why is Krishna saying this knowledge, this science is science as it appears to be lost? क्या lost हुआ था? क्या lost हुआ था जो कृष्णा अगर वापस बोलने आए? What was lost? The Vedas were there, the Puranas were there, the Itihas were there, the Upanishads were there, everything was there. What was lost then? What was lost? That Krishna had to come again to re-establish it. And Krishna did. What was lost? The parampara, yeah. Chain. What was lost in the chain? What was lost? The meaning, the correct meaning was lost. Because even though the sadhus were there, बड़े बड़े साधु थे वो टाइम पे. तो महाभारत के टाइम पे कौन कौन थे? कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, वेद व्यास, और कौन कौन थे? संदपनी मुनि, और कौन कौन थे? गार्ग मुनि. सब लोग तो थे वो टाइम पे, इतने बड़े बड़े सेंट. और कौन कौन थे? और कौन कौन थे वो टाइम पे? संदीपिनी मुनि थे, गार्ग मुनि थे, वेद व्यास थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, दुर्वासा मुनि, यहाँ दुर्वासा मुनि थे. इतने बड़े बड़े मुनीस थे. परशुराम himself was there, was lost. कृष्णा ने किसी के ऊपर नहीं छोड़ा कि ठीक है आप लोग को जो मन करे करो, जैसे आजकल ना कि इंटरप्रेट करते हैं एंड एवरीथिंग इज कर. अगर आपने एक भगवा ड्रेस पहन लिया और आप कुछ भी बोलो तो सही हो जाता है वो, नहीं. या किसी उनकी कहीं भी कोई भी परंपरा आप स्टार्ट कर सकते हो, नहीं. कृष्णा कम बिकॉज दिस परंपरा इज सो इम्पोर्टेंट. द गुरु शिष्य परंपरा इज सो इम्पोर्टेंट. दैट्स व्हाई कृष्णा हैज टू कम अगेन टू रीस्टैब्लिश इट. ये चेंज जो है वो ब्रोक हो गया. और वो आते तो फिर उन्होंने वेद व्यास, कृष्णा ने वेद व्यास को एम्पावर किया. ब्रह्मा को जो नॉलेज दिया था कृष्णा ने, ब्रह्मा ने नॉलेज नारद को दिया, नारद ने वो नॉलेज वेद व्यास को दिया. कृष्णा ने भी एम्पावर किया वेद व्यास को के लिखो इसको, क्योंकि अब लोग मेमोरी से इसको समझ नहीं पाते हैं. उसके पहले इट वाज मेमोरी, सुन सुन के आप बता सकते थे. लेकिन अब कलयुग आने वाला था, it is lost. It will be, people won't be able to remember, memorize it so much. So वेद व्यास को लिखने के लिए बोला कि आप लिखो इसको. एंड फिर वो परंपरा, उसका मीनिंग क्या है? what वेद व्यास learned from नारद, what नारद learned from Brahma, and from what Brahma learned from Krishna, that has been coming down, the same parampara. So this is the reason why you have to accept a bona fide मतलब जो इस रियल परंपरा में गुरु आ रहे हैं और जो अपना मिर्च मसाला नहीं लगाते हैं, जो ये नहीं बोलते कि अकॉर्डिंग टू मेरा ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन. व्हाट इज द यूज ऑफ योर ओपिनियन?
अपने ओपिनियन का भेल बनाओ और खा लो उसको। आपके ओपिनियन को किसी की पड़ी नहीं है। कृष्णा का ओपिनियन क्या, ये बोलो। हाँ, कृष्णा का ओपिनियन बताओ हमको, ये कृष्णा ने क्या बोला है। इसलिए लोग मेनी विल कम, ओ गॉड इज निराकार एज पर आवर ओपिनियन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर ओपिनियन? कृष्णा से भगवत गीता, आई एम नॉट निराकार, आई एम सच्चिदानंद। सो व्हाट इज योर ओपिनियन? आप कृष्णा को मानोगे या किसी भी एरे गेरे नत्थु खेरे गुरु गुरु को कृष्णा निराकार है? लेकिन ये प्रॉब्लम हो रही है आज के टाइम में, क्योंकि हम तो शास्त्र पढ़ते नहीं ना, हमको बोनोफाइड परंपरा के बारे में मालूम है ना, हम इतने सिंसियर है, सीरियस है। बस हमको तो अपनी नॉलेज का क्या बोलते प्रदर्शन करना है, तो हम कहीं से भी लेके आके मिर्च मसाला और इंटरनेट पे भेज दें, चालू वीडियो बनाने लग जाते हैं हम। क्या बोलते हैं ना, मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं उसके ऊपर भी। कोई भी नॉलेज को 3 वे होता है उसको एस्टेब्लिश करने का। एनीथिंग यू हियर, any knowledge you take, 3 ways to establish whether that what you're speaking is fact or just speculation. Guru, sadhu, shastra. Guru, sadhu, and shastra. If I'm telling you something, if what I'm telling is not verifiable by another person in the parampara and the shastra, then you can reject it. लेकिन हम कम वेरीफाई करते नहीं है, हम फेस वैल्यू पे ले लेते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। वी आर वेरी जिसको बोलते हैं ना लेजी इन दिस, वी डोंट रीड, वी डोंट वेरीफाई। जो यूट्यूब पे दिखा हमको, हमने एक्सेप्ट कर लिया। अभी जैसे यूट्यूब पे है एक बहुत, मैं बहुत बार बोलता हूँ कि एक बहुत बड़ा मिलियंस ऑफ व्यूज के नरसिंह देव और शिव जी का वॉर हो गया था, और उस वॉर में शिव जी ने नरसिंह देव को मार दिया। अब ये पूरे इंटरनेट पे मिलियंस ऑफ व्यूज है, वेयर नरसिंह देव एंड शिव जी का वॉर हुआ। जब नरसिंह देव ये नहीं हुए, काम डाउन नहीं हुए, तो शिव जी आए उनको काम डाउन करने के लिए, तो भी काम डाउन नहीं है, तो शिव जी ने क्या बोलते एक हाफ लाइन, हाफ एनिमल, हाफ ह्यूमन का फॉर्म लिया एंड नरसिंह देव को मार दिया, राइट। तो ये, और ये मिलियंस ऑफ व्यूज, एंड आप देखोगे इसके ऊपर बहुत से सीरियल्स बन चुके हैं, लाखों लोगों ने देख लिया है, इतने, और लोगों को लगता है कि ये सच हुआ। अब ये जो है स्टोरी, ये कोई भी ऑथेंटिक पुराण में इसका वर्णन नहीं है, कोई भी ऑथेंटिक पुराण में इसका वर्णन नहीं है। ये मैकले ने स्टोरी बनाई थी ये प्रूफ करने के लिए कि आपके जो भगवान है वो एक दूसरे झगड़ा करते हैं। ये जो आपके भगवान है ये एक दूसरे झगड़ा करते हैं। मैकले ने अब जब he wanted to destroy the Indian Vedic system, the Indian education system, he came out with this story that देखो ये नरसिंह देव और शिव जी, विष्णु और शिव तत्व में झगड़ा हुआ और शिव तत्व ने विष्णु तत्व को मार दिया, मतलब शिव सुप्रीम हो गया। तो अब सब शिवाइट्स ने ये स्टोरी को फैलाया। हम तो वेरीफाई करते नहीं है, उनको तो अच्छा ये मिल गया ना कि अरे वाह शिव जी महान हो गए, शिव जी द ग्रेट इज द टॉप मोस्ट, विष्णु तो नहीं है। तो उन्होंने शिवाइट्स एंड शक्ताइट्स ने ये इतना फैलाया ये इसको कि अब हर एक घर घर में ये स्टोरी हो गई है। बट ये वेरीफाई करने की कोशिश नहीं की कि स्टोरी किसने फैलाई, और ये स्टोरी का कोई प्रमाण भी है क्या शास्त्र में, नहीं वेरीफाई किया। ये होता है बोनाफाइड परंपरा में नहीं आना। और ये स्टोरी को मैंने बड़े बड़े सन्यासी लोग को बोला है, देखा है बोलते हुए। I have seen many big sannyasis, even Shankaracharya I have seen tell this story. It is very unfortunate in India that this story has become a household name in the so-called spiritual circle, but there is no authentication of this story anywhere in the Shastra. It was just a mischief created by Macaulay to show the Vedic system as a low grade system. ये देखो यहाँ तो आपके भगवान ही एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। So now this is what happens, we have picked this, like that many stories are there, like that रुद्र और उनका झगड़ा हो रहा है, ये और
हनुमान जी के लिए इतनी स्टोरीज आ गई है जिनका कोई वर्णन नहीं है ना। जय बजरंग बली एक सीरियल है, उसमें इतनी स्टोरीज जिन जो कोई जिसको जो कहीं प्रमाण ही नहीं है उनका। तो रॉन्ग नॉलेज। सेकंड, जैसे अभी ये सीरियल था राधा कृष्णा। अब राधा रानी कभी वृंदावन के बाहर गई नहीं। राधा रानी ने वेंट आउटसाइड वृंदावन, राइट। राधा रानी बस वृंदावन खाली कुरुक्षेत्र जाके वापस आ गई बस एक बार, कभी गई नहीं वृंदावन। और उसमें क्या जाता है सीरियल में कि राधा रानी इज गॉन टू द्वारका। वहां पे राधा रानी महालक्ष्मी बन गई। महालक्ष्मी वहां राधा और रुक्मिणी के बीच में तू मैं हो रही है, ये हो रहा है वो। मतलब तो ना सर ना पांव, स्टोरी कहां से लेके आते हैं पता नहीं। एंड लाखों लोग पढ़ते हैं, देख रहे हैं इसको, एंड उनने ऑथेंटिक मान लिया इसको। ऑथेंटिक मान लिया इसको। ऑथेंटिक मान लिया इसको। देखा है कितने लोगों ने देखा राधा कृष्ण सीरियल? पूरा सीरियल वो जो है ना वृंदावन के बाद जो भी है पूरा स्पेकुलेशन है। राधा रानी के हस्बैंड का क्या नाम बताया उसके अंदर सीरियल में? आर्यन। हाँ आर्यन। अब राधा रानी के हस्बैंड का नाम आर्यन था ही नहीं, उनके हस्बैंड का नाम अभिमन्यु था। आर्यन था ही नहीं नाम। अब पूरे इंडिया को पता है कि आर्यन नाम था। हो गया एक मतलब फिक्शनल नाम बना दिया। गूगल पे भी सब जगह राधा रानी हस्बैंड नेम आर्यन। अरे बाबा, कभी आपने ऑथेंटिक स्क्रिप्चर पढ़े हैं? उसमें उनका हस्बैंड का नाम दिया है अभिमन्यु। आर्यन कहां से आ गया? कौन है आर्यन? सो इफ यू डोंट, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, इफ यू डोंट टेक नॉलेज इन प्रॉपर परंपरा, ऐसे ही आप लोग भ्रमित हो जाओगे। ऐसे भ्रमित, ये कुछ भी बता रहे हैं जिसका कोई सर ना कोई पैर। तो दिस इज व्हाई वी हैव टू एक्सेप्ट a bona fide parampara and accept a guru who is in that parampara. Now guru क्या होना चाहिए? गुरु कौन होना चाहिए? कोई किसी भी गुरु को एक्सेप्ट कर ले उस परंपरा में भी नहीं। No, we have to understand that, like I said, it is illegal to become a spiritual master if one is unable to deliver. आप गुरु नहीं बन सकते यदि आप खुद पहली बार तो लिबरेटेड नहीं हो। मतलब you have to be a liberated soul to make disciples. If you're not, don't even think of making disciples. And second, one should therefore approach an authorized person to understand Krishna. The spiritual master has actually, the guru has actually seen Krishna, therefore he can explain him properly. तद विधि पढ़ी पाते ना परिपष्टेन सेवया। हाँ, तद विधि। उसके बाद में क्या है? उसके बाद श्लोक के जो है लास्ट वर्ड क्या है उस श्लोक में? seen the truth. कृष्णा says I am the truth. So गुरु वो हो, तद विधि, ये विधि है। कृष्णा बोल रहे हैं ये विधि है, तद विधि पढ़ी पाते न परिपष्टेन सेवया उपदेशांति ते ज्ञाना, ज्ञानी नाम तत्व दर्शना। उनके पास जाके ज्ञान लो, सरेंडर करो वो गुरु को जिन्होंने भगवान को देखा है, जिन्होंने दर्शन किए हैं भगवान के, जिनको एब्सोल्यूट ट्रुथ के बारे में पता है, जिन्होंने अपने लाइफ में हर चीज को एस्यूमिनेट करके, हर चीज को समझ के, इम्प्लीमेंट करके, रियलाइज करके, he completely realized soul and he has seen the truth, then he can give you the truth. मेरे पास में अगर 1000 रुपए हैं तो मैं आपको दे सकता हूं ना। आप आओगे मेरे पास, प्रभु जी मुझे 1000 रुपए दो, अब मेरे पास है नहीं तो मैं कहां से दूंगा? तो आप जाते हो किसी गुरु के पास, प्रभु जी मुझे लिबरेशन चाहिए, भगवान के पास, भगवान को देखना है। अब उसने भगवान को खुद नहीं देखा है तो आपको कहां से दिखाएगा वो? How will he show you if he has not seen the truth? He can't show you the truth. So you have to take the gyan from such a person who has seen the truth, who has seen Krishna factually,
and that's why he can explain to you Krishna. So वो कौन होते हैं? वो परंपरा में आते हैं, उन्हीं नित्य सिद्ध डिवोटीज बोलते हैं उनको, जिनको स्वयं कृष्णा खुद गोलोक से हमारे लिए कृष्णा सेज आई कम और सेंड माय रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, जिनको सप्तवेश अवतार भी बोलते हैं, जिनको कृष्णा का एक्सपेंशन भी बोलते हैं. गुरु इज एन एक्सपेंशन ऑफ कृष्णास संधिनी एंड हलादिनी पोटेंसी. तो वो दो शक्ति जो है, संधिनी शक्ति और हलादिनी शक्ति का मिक्सचर होता है, तो उसका जो एक्सपेंशन होता है वो गुरु होता है, कृष्णा सेंट्स. तो वो गुरु ने कृष्णा के साथ में रहे हैं, कृष्णा को देखा है, दे नो द पाथ, कि आप कृष्णा के पास कैसे जा सकते हो. उन्होंने पाथ को ट्रैवल किया है, उन्होंने लोगों को पाथ ट्रैवल करने को बोला है और लोगों ने ट्रैवल करके परफेक्शन पाया है. उस टाइप के गुरु को आपको एक्सेप्ट करना है. अ लेमैन कैन नॉट बिकम अ गुरु. जो लेमैन होता है ना, जो किसी को भी आप बना लो, ऐसे आप भगवान कभी नहीं मिलेंगे. विल बिकम मोर एंड मोर कंफ्यूज्ड. Unless one is initiated by a right person who always carries Krishna within his heart, one cannot acquire the power to carry the Supreme Lord within the heart if he is not a bona fide spiritual master. When Prabhupada was writing his books, Prabhupada said, people, after Prabhupada wrote it, Prabhupada used to read his own books. So some disciple asked Prabhupada, why are you reading your own book? Prabhupada said, I never wrote this book. Krishna was dictating to me. Prabhupada, Krishna was factually dictating. Krishna was dictating and Prabhupada was writing. So this is Guru Tattva. Guru Tattva is, we should not become, cheaply, किसी को गुरु एक्सेप्ट कर लें. He must be, जो गुरु होते हैं, वैसा गुरु हमको एक्सेप्ट करना है या ढूंढना है, या गुरु मिले हमको वैसे जो जिनका कभी फॉल डाउन ना हो. ये बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, जो किसी क्षण के लिए भी भ्रमित नहीं हो सकते. इज एन उत्तम अधिकारी, टॉप मोस्ट डिवोटी. ही इज ऑन द टॉप मोस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग. इसमें एक श्लोक आता है, तीर्थे पिंड दिले सा नास्तेर कृतगण, सेहा यार पिंड दे तारे सही जन, तोमा देखिले मंत्र कोरी कृतगण, सही क्षण सर्व बंध पाया विमोचन. If one offers obligation to forefather in a holy place, then the forefathers are delivered. But one delivers only he to whom the obligation was offered. By seeing you means Gurudev. Just by seeing Guru, a bona fide spiritual master who is a Nitya Siddha devotee from Goloka Vrindavan. By seeing you, however, millions of forefathers are immediately freed from material bondage. That is a Guru. Eteva tirtha nohe tomara smaran, tirthera o parama tumi mangala pradhana. Therefore, holy places are not equal to you. For you purify even the holy places. A Guru can purify even the holy places. A Kanishta Adhikari, it is said in the Shastra, a Kanishta Adhikari, a neophyte devotee goes to holy place to look at the holy place. कैसी है, क्या है holy place, देखने के लिए जाते ना. वृंदावन जा रहे हैं हम, टूरिज्म, धाम दर्शन करने, देखने के लिए. Neophyte, a मध्यम अधिकारी goes to a tirtha to find a sadhu who has seen Krishna, okay, who knows the truth, who is a Nitya Siddha devotee, to find a sadhu. Uttam Adhikari, why does he go to the tirtha? एक उत्तम अधिकारी तीर्थ क्यों जाते हैं पता है? क्या काम उनका तीर्थ में? क्योंकि वो खुद ही तीर्थ है. तो क्यों जाते हैं तीर्थ उत्तम अधिकारी? Can anyone tell? Yeah, to purify the tirtha. उनमें इतनी शक्ति होती है कि वो तीर्थ को प्योरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि वो कृष्णा को कैरी कर रहे हैं. तो जब हम तीर्थ जाते हैं ना, तो हमारा पाप तीर्थ में छोड़ के आ जाते हैं, गंगा में, यमुना में स्नान करते हैं. तो एक प्योर डिवोटी तीर्थ इसलिए जाते हैं
ये जो पाप है सब, जो अदरवाइज गंगा यमुना, जैसे मदर गंगा, she went to Krishna, in Dwapar Yuga, crying, and even Bhumi went to Krishna crying, and in Dwarka, and Krishna said, "Why are you crying?" And so she said, "We saw a devastating, Varnan of Kali Yuga." Ved Vyas was narrating, and we heard that, and in Kali Yuga, all these sinful people will come to all the tirthas, Haridwar, different Rameshwaram, or Jagannath Puri, or Vrindavan, or Ayodhya, all Badrika Ashram, everywhere they'll come, and then they'll take bath in all our holy rivers, and they'll give all the sinful their sins to us. So हमको कौन प्योरीफाई करेगा? हमारा क्या होगा? हम उनके सिन ले लेके कब तक हम, we need someone to purify ourselves also. So Krishna says, don't worry. Krishna, that's why, Krishna, that is where Krishna, predicts about Srila Prabhupada. Where Krishna says, don't worry, in Kali Yuga, my devotee will come. He will go to Vrindavan, and from there he'll go to the west. And then he'll make the whole world into devotees. And he will bring all the devotees with vertical, straight tilakas, and shikhas on their head. And they will do Harinam. And they will come to the Tirtha. And that devotee who is bringing all those devotees, that devotee will purify you back. So that is what is the power of a pure devotee. Power of a devotee. So that is the devotee we have to search. Such a devotee can become a Diksha Guru. It can become an Acharya, can become a Sampradaya Guru, and can deliver the whole world. Not any ordinary Guru. So that is the power of a pure devotee. That he has the potency. He has the Swarup Shakti of Krishna, through which he can even purify the Tirthas. Pura Brahmand Tirtha mein jata hai. Even the demigods come to Tirtha to take bath to purify their consciousness. But a devotee can go and purify the Tirtha. A Nityasiddha devotee. That is the power of a devotee. Understand? So that kind of devotee we have to search to take Diksha, not from ordinary. Otherwise, you will not be able to go back home, back to Godhead. Any layman, if you go and take Diksha, he can't take you back home, back to Godhead. आपका दीक्षा वेस्ट हो जाता है. पहली बात तो आप खुद सिंसियर नहीं हो पाते हो, सीरियस नहीं हो पाते हो, और फिर वो आपको गोलोक लेके नहीं जा सकता क्योंकि वो खुद गोलोक नहीं जानता. How will he take you? That's why Shastra says one should not become a spiritual master unless he has attained the position of a Uttam Adhikari. And there is no possibility for a Uttam Adhikari to even become 1.000% affected by the material modes of nature. He cannot become affected. He is Mahabhagavad. He is always, what do you say? The word is there. Embraced by Krishna. He is always embraced by Krishna. Means Krishna is always with the pure devotee. He is a liberated person. He is not ordinary. It should be understood that the conditioned soul is tightly tied by the ropes of illusion, because the bound cannot help the bound. The rescue must be liberated. Therefore, only Krishna or his bona fide representative can release the conditioned soul, because Krishna sends his representative. So this is Guru Tattva. Guru is not some ordinary के कहीं पे जाके हम किनका हमको अच्छा लग रहा है कथा तो हम उनको एक्सेप्ट कर लें, या किसी का हमको लुक अच्छा लग रहा है तो एक्सेप्ट कर लें. फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये क्राइटेरिया है कि he should, is that guru coming in the parampara, is that guru authorized by his guru to become guru or no. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. परंपरा में भी आ सकता है, इनका परंपरा के आने वाला कोई भी गुरु बन सकता है? नहीं. रूपा बोलते हैं, he is to be authorized, authorized by his guru. Otherwise, this shloka, is valid. If a guru, this shloka, Chaitanya Mahaprabhu tells this shloka, मंत्रेर के दिया प्राणो अमार तुम्हार उपदेष्टा ताकि के ना है व्यवहार. What to speak of giving the mantra
as long as your mantra guru is present physically or in sound, क्या करो? As long as your mantra guru is present physically or in sound, you cannot go elsewhere. For this would jeopardize the spiritual life for both you and others. Someone else is gone. Physically or in sound. So कलयुग के प्रोग्रेशन के कारण, टेक्नोलॉजी के कारण, Srila Prabhupada is physically present in his murti and in sound. That's why Prabhupada said, my books will be the law book for the next 10,000 years. Because आज वो फैसिलिटी अवेलेबल है ये श्लोक को पूरा फुलफिल करने के लिए. पहले था कि किसी ने दिया, वो साउंड ईथर में लॉस हो गया, वो साउंड ईथर में गुम गया. टिल भक्तिनाथ ठाकुर और before that, Jagannath Babaji, the sound was lost. That's why they had to appoint, okay, now you be a guru. But today, because of technology and everything, this shloka, which was not possible pehle, is now possible now. And this is the reason why Prabhupada set this Ritvik system. Understand? That इसमें एलिमेंट ही गलत होने का निकाल दिया प्रभुपाद ने कि अब यू डोंट हैव टू यूज योर ब्रेन्स कि हम बोनो परंपरा है, प्रभुपाद है, ये एक्सेप्ट में दीक्षा गुरु. अब आपको और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है कि ये बोनाफाइड है, नहीं है, ढूंढने की जरूरत ही नहीं है आपको. वरना यू हैव टू सर्च फॉर अ गुरु. बोनाफाइड परंपरा में भी आपको गुरु आपको समझता है, आप गुरु को समझते हो, बोनाफाइड है, नहीं है, लिबरेटेड है, नहीं है, उनके साथ आप रहते हो, समझते हो, एंड देन दीक्षा लेते हो. लेकिन प्रभुपाद ने ये एलिमेंट ऑफ ग्रे एरिया जो बोलते हैं कि इसमें चांसेस है कि आप भ्रमित हो जाओ, चांसेस है कि आप किसी ऐसे इंसान को गुरु मान लो परंपरा में भी कि वो लिबरेटेड नहीं हो, क्योंकि परंपरा में इसलिए हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि लिबरेटेड ही होगा. नहीं, पहले दो चीज, क्या वो उसके गुरु ने उसको ऑथराइज किया है? अगर नहीं किया तो ऑब्वियसली गुरु नहीं बोनाफाइड. सेकेंडली, क्या वो लिबरेटेड है? वो कैसे मालूम करोगे? आप मालूम नहीं कर सकते वो, क्योंकि वो ग्रे एरिया है, आपको पता नहीं लिबरेटेड नहीं. इसलिए प्रभुपाद ने दोनों एलिमेंट को निकाल दिया. प्रभुपाद ने ना किसी को ऑथराइज किया और ना प्रभुपाद ने बोला नो मोर आचार्य आफ्टर मी. सो आगे का प्रभुपाद ने कैंसिल ही कर दिया. सो नाउ हमारे लिए हमारा ये हेडेक प्रभुपाद ने हमारे से दूर कर दिया गुरु तत्व में. Because the facilities are available in Kali Yuga because of technology advancement. So this shloka which is there, Mahaprabhu says, what to speak of giving the mantra? As long as your mantra guru is present, present physically or in sound, you cannot go elsewhere. आप किसी और से दीक्षा लेना नहीं. आपको हरे कृष्ण महामंत्र किसने दिया? हरे कृष्ण महामंत्र आपको किसने दिया? किसके किताबों से आपको मिला हरे कृष्ण महामंत्र? किसके मंदिर से आपको मिला हरे कृष्ण महामंत्र? किसके मंदिर से, किसके किताबों से, किसके हरिनाम? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. स्पिरिट हैज द पावर टू इनिशिएट एनीवन. Spirit is not contaminated by matter. Matter spirit को छू भी नहीं सकता है. So प्रभुपाद का साउंड अवेलेबल है, प्रभुपाद का साउंड अवेलेबल है. अंडरस्टैंड? वो साउंड हमको इनिशिएट कर रहा है, अभी भी हमारी भक्ति को इनिशिएट कर रहा है. दिस इज गुरु तत्व. यू टू अंडरस्टैंड. ओके, किसी को अच्छा लग रहा है, बहुत फॉलोअर्स है, ये सब, उसमें मत, प्रभुपाद ने वो सब निकाल ही दिया है. वो ग्रे एरिया, प्रभुपाद रिमूव दैट ग्रे एरिया कि जहां पे आपको, क्योंकि यदि आपके हाथ में चॉइस दोगे तो आप मिस्टेक ही करोगे. ये पहले हो चुका. टिल भक्ति विनोद ठाकुर, that time there was a lot of chaos happening in our sampradaya, because there was this Bipin Bihari group, there was the Jagannath Babaji group.
So Jagannath Babaji group was Hare Krishna Mahamantra will reveal everything to you. Bipin Bihari group was Guru is required to reveal your spiritual form. अब जहां गुरु का एलिमेंट डाल दिया तो इसमें बहुत बड़ा ग्रे एरिया आ जाता है कि अब आपको इसमें मंजरी दीक्षा लेनी पड़ेगी आपको आपका स्वरूप मालूम होने के लिए, ठीक है। तो आप किसी गुरु के पास जाओगे, अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि वो गुरु रियली मंजरी स्वरूप उसको रियलाइज हुआ है नहीं हुआ है? वो तो कोई बोल देगा, मैं आज बोल दूं ओके माय नेम इज सो एंड सो मंजरी, आई एम सो एंड सो इयर्स, I do this seva, this, my Swarup, and I will give you Manjari Diksha. And your Swarup is also your so and so Manjari. You look like this, your physical appearance is like this, your dress is like this, your abhav is like, your seva is like this, you are in this group, your everything detail बता दूं मैं आपको, ठीक है। आप कैसे उसको गेस करोगे कि मैं आपको सही बता रहा हूँ गलत बता रहा हूँ? How will you establish that what I told you is correct? How will you understand or establish that whether I realized my Manjari Swarup or no? तो एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया आ गया इसमें, बहुत बड़ा ग्रे एरिया, तो उसको पहले हटाना जरूरी था। इसलिए भक्ति सिद्धांत ने मंजरी दीक्षा को ही खत्म कर दिया परंपरा से। एंड ही एक्सेप्टेड द जगन्नाथ बाबाजी लाइन वेयर द होली नेम विल रिवील नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबो नोय श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो उदय। आप चैंट करो हरे कृष्णा श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, आपका हार्ट प्योरीफाई होगा, जैसे सूरज सुबह उगता है वैसे आपके हार्ट में आपका स्वरूप उदय हो जाएगा। इन द नेम, क्या कैसे किया ये? जो नेम में नाम है, नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह, तो नाम में भक्ति सिद्धांत ने जो उनका मंजरी स्वरूप है, जो स्वरूप शक्ति है कृष्णा की, उसको डाल के दिया। प्रभुपाद ने भी वही किया कि नाम में ही आपका स्वरूप है, नाम के अंदर ही नाम को ही क्या बोलते हैं एनर्जाइज, जैसे सुख होता है ना, सुख ने he ate the bhag, what do you say, when the parrot eats the fruit become more ripened. So when he spoke the Srimad Bhagavatam, it became even more ripened. Similarly, when Prabhupada, he chanted, and then when he chanted, Srila Prabhupada added the Swarup Shakti of Krishna in the mantra itself. So mantra is already Dikshit now, already energized with the Swarup Shakti. So now you don't have to go to any guru to ask for your Swarup, कि मेरा स्वरूप क्या है। तो ये जो एलिमेंट है ग्रे एरिया, वो प्रभुपाद ने निकाल दिया हमेशा के लिए। अब हरे कृष्ण मामला जब करो आपका हार्ट प्योरीफाई होगा, ऑटोमेटिकली आप जब आसक्ति स्टेज पे पहुंचोगे, आसक्ति रुचि स्टेज पे, तो आपको अपना आभास, स्वरूप का आभास दिखना लग जाएगा कि आप ये हो, एंड भावा स्टेज पे एकदम क्लियर हो जाएगा आपका, यू आर साख्य दास्य वात्सल्य माधुर्य क्या भाव में हो। तो पूरे एलिमेंट को हटा दिया। तो एक, और उसके बाद में प्रभुपाद ने ये भक्ति सिद्धांत ने मंजरी स्वरूप दीक्षा को हटा दिया। एक बहुत बड़ा जो आपको उल्लू बना सकता था, कोई भी गुरु क्लेम कर सकता है कि मैं मंजरी हूं और मैं आपको दीक्षा दे रहा हूं, वो एलिमेंट हटा दिया। एंड प्रभुपाद ने सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट जो आपको भ्रमित कर सकता है कि कोई भी गुरु बन जाए बिना क्वालिफिकेशन के लिए, तो उसको भी हटा दिया ऋत्विक सिस्टम से। कि अब प्रभुपाद said, now because the facility is available for me to be in sound, the tapes are available, the Prabhupada's Harinam is available, Prabhupada's Gayatri Mantra is also available, ना? प्रभुपाद ने तो बहुत लोगों को अपना टेप से ब्राह्मण दीक्षा दिया। एक माता जी को तो प्रभुपाद ने क्या बोला पता है? एक प्रभु जी को बोला, प्रभुपाद ने लेटर लिखा, प्रभुपाद ने उनको ब्राह्मण दीक्षा चाहिए था, ठीक है, ब्राह्मण दीक्षा। लोग बोलते हैं ना कि कैसे वर्क करेगा प्रभुपाद ने उनको लेटर लिखा कि आई एम सेंडिंग यू माई गायत्री टेप, ओके, आई एम सेंडिंग यू माई गायत्री टेप, यू प्ले दैट गायत्री टेप एंड यू टेल योर वाइफ टू चैंट इट फॉर यू इन द इयर्स। सो प्रभुपाद ने जो डिवोटी था उसकी वाइफ को एम्पावर किया ऑन हिज बिहाफ, ऋत्विक, टू चैंट द गायत्री मंत्र
for this person. Understanding? So अब what is the जब वो टाइम पे जब हो सकता था वो टेप के थ्रू गायत्री मंत्र या हरे कृष्ण महामंत्र बहुत लोगों को प्रभुपाद ने तो लेटर पे your you can hear this chant this mantra and you can your name is this you don't have to मिले भी नहीं प्रभुपाद से and जो ऋत्विक थे वहां पे जो हवन कर रहे थे पूजा उन्होंने किया and they give प्रभुपाद के टाइम पे 72 से सिस्टम चल रहा है the system of initiation on by the Ritviks on behalf of Prabhupada is going from 72 to 77. कितने साल हैं? 5 साल. 5 साल तक प्रभुपाद के बिहाफ पे कोई सन्यासी कोई टेम्पल प्रेसिडेंट दीक्षा दे रहा था. तो अचानक जब वो टाइम पे वो हो सकता था तो अब क्यों नहीं हो सकता? मुझे बताओ. जब वो टाइम पे वो दीक्षा वैसे मिल सकती थी प्रभुपाद के टाइम पे कि कोई आपका जो आपका टेम्पल प्रेसिडेंट है क्या होता था सिस्टम क्या था यू हैव टू अंडरस्टैंड. टेम्पल प्रेसिडेंट रिकमेंड करता था प्रभुपाद को लेटर कि प्रभुपाद आई एम सीइंग these 10 people for last 1 year they are chanting 16 rounds, they are following the 4 Active principles, they are doing seva, they are doing sadhana, and they are ready for हरिनाम दीक्षा. एंड वो लेटर में उन लोगों का नाम भेज के प्रभुपाद का भेजा था. प्रभुपाद बोलते ओके ठीक है इनका एक छोटा टेस्ट ले लो what is the हरे कृष्ण महामंत्र एंड what are the 4 principles, 4 नियम कौन से हैं क्यों जो पालन करने हैं all these little questions छोटा 5-6 क्वेश्चन का एक टेस्ट दे देता. प्रभुपाद ने बोला ओके these are the names and you do the havan. जो टेम्पल प्रेसिडेंट था you can do the havan on my behalf because प्रभुपाद अमेरिका में वो इंडिया में कहीं like और प्रभुपाद ऑस्ट्रेलिया में वो रशिया में like that so you can do on my behalf the havan everything and these are the names you can give that person the mala which I've chanted or and or you can sometime even the Ritvik was allowed to chant you can chant on my behalf and give it the mala to that person and that's initiation. So that process is already going on. So जब वो हो रहा था वो टाइम पे तो अब क्यों नहीं हो सकता वो बताओ मुझे. What is the harm to do it now when that was possible during Srila Prabhupada's time? अभी भी वो सिस्टम है. You all are there. I am the temple president. I can write okay Srila Prabhupada these are the people who are ready for initiation 10, 15, 20, 30, 50, 100 names I can just show it to Prabhupada मूर्ति is there ना physical मूर्ति को आप बोलोगे तो पत्थर कैसे वर्शिप क्यों कर रहे हो आप फिर रोज आप आरती क्यों करते हो श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा. Prabhupada ने already set up किया है ना सिस्टम ये temple president or the Ritviks can do it on my behalf so you can say and then the names and everything is given and you can start your bhakti. So this is already going on. It already can be, it is same system we have to just Prabhupada जब भी July 9 लेटर में क्या है प्रभुपाद ने लिखा है प्रभुपाद ने 11 लोगों को ऑथराइज किया कि now you can give initiation on my behalf, you can chant on those people's beads, you can give the names to those people but they will be my disciples. सेम थिंग अभी होगा क्योंकि लेकिन अब वो एक क्वेश्चन है कि वो लोग का तो फॉल डाउन हो गया 11 लोग का तो आप कैसे करेंगे. तो प्रभुपाद ने एक और किया प्रभुपाद टेम्पल प्रेसिडेंट्स को भी ऑथराइज किया है ये चीज करने के लिए. सो दोस पीपल हु आस्क्ड मी कि हाउ आई एम गिविंग नेम्स और हाउ डूइंग प्रभुपाद ने ऑथराइज द टेम्पल प्रेसिडेंट. ही हैज द पावर टू डू इट in direction of management. Prabhupada authorized the temple president also to do that these things. So we all can act as Ritviks and we can initiate for next 10,000 years all temple presidents till the GBC again is formed or the Ritviks are again there can initiate disciples on behalf of Srila Prabhupada to become Srila Prabhupada's disciple because Prabhupada ने जुलाना नेत्र में already authorized कर दिया कि I am accepting all of them. Henceforward, this is the initiation will be carried on and I'm accepting all of them. So हमारा headache Prabhupada ने खत्म कर दिया गुरु तत्व. ऐसे कि हमको किसी के एक किसी गुरु को सर्च करना नहीं. आप अपना चैंटिंग चालू रखो, 16 माला करो, 4 नियम का पालन करो. जिस दिन आप स्टेबल हो जाओगे उस दिन you can approach your temple president or the Ritvik in your area and ask, okay, can you
initiate me on Srila Prabhupada's behalf, and that will be done. Understood? So this is this is a system Srila Prabhupada said. But then but ये एक सिंसियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है. हमको सिंसियर होना पड़ेगा इसके लिए. We can't just take it for granted because Prabhupada is accepting everyone. So even without following anything, we accept it. We become Prabhupada disciple. No, you also have to, because Paramatma is there in the heart. Paramatma will not let you cheat. If you cheat, Paramatma will get, अरे ये तो cheater है. No, you will not progress. नाम आप गुरु अपराध कर दोगे. So you have to be very careful. So you have to be very submissive. Submissive कैसे होना पड़ता है? You have to understand that the mood, हमारा mood क्या होना चाहिए towards the Guru. Mahaprabhu is, he is meeting, Keshav Bharti, and what does Mahaprabhu says? This conversation happening. Anugrahi tumi mora kara mahasaya patit pavan tumi maha kripa maya. Gauranga said, "Oh Master, please be merciful to me. You are most compassionate deliverer of the fallen soul." This should be our disciples' mood. We have to become disciplined. We have to acquire this mood. Okay, then Tomi ei divara para Krishna prana natha nirva vidhi Krishna Chandra vase toma tatha. Lord Krishna always sits in your heart. Therefore, you are qualified to give me Krishna. That is, Krishna is my life and soul. So you are authorized to give me Krishna. So Krishna is sitting in your heart. Krishna dasya vinu more nahe kichuan heno updesha tomi more dehi dina. I have no desire other than the service of Krishna. Please instruct me accordingly. This is the mood of a disciple. I have no other desire other than Krishna. If you have desire other than Krishna, then don't approach a guru. Prabhupada is saying many times, don't have a rubber stamp कि मेरा एक गुरु थप्पा लग गया मेरे पास एक कृष्णा स्वयं भगवान है. कुरुक्षेत्र में कृष्णा को सबने देखा. उसके पहले कृष्णा को देखा. दुर्योधन ने कृष्णा को देखा. कुछ फायदा हुआ दुर्योधन का? कुछ ज्ञान आया उनके पास? नहीं आया. तो भगवान को या गुरु को एक्सेप्ट करने से हमें कुछ नहीं हो मिलने वाला. हमें वो डिसिप्लिन लाना पड़ेगा अपने लाइफ में. We have to become disciplined. We have to become sincere. We have to become serious. जब वो एक्ट करेगा. इलेक्ट्रिसिटी तो आ रही है, आपने अपना ही वायर काट दिया है, तो क्या बल्ब जल जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी आ रही है आपके घर तक, आपने घर का वायर, अपना खुद का वायर काट दिया, बल्ब जल जाएगा, एसी जल जाएगा. दोनों होना चाहिए. पावर हाउस भी है और आपका वायर भी जुड़ा हुआ होना चाहिए. पावर हाउस से पावर नहीं है तो भी नहीं होगा, और आपका वायर कटा हुआ है तो भी नहीं होगा. बोथ वेज होना पड़ेगा. सिंसियरिटी बोथ वेज आनी पड़ेगी. वन वे सिंसियरिटी विल नॉट गोइंग टू वर्क. I'm saying that is the reason why none of you are getting the taste in the holy name. आयाराम गयाराम जो है रेगुलर, उनको टेस्ट है, उनकी भक्ति स्ट्रांग है, वो बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पाते हैं. लेकिन जो आयाराम गयाराम जैसे हैं, वो आ जाते हैं 10 मिनट बैठ के अटेंड देके चले गए, एंड दिस दैट, फिर उनकी भक्ति ऐसी होती है. ओ प्रभु जी, मेरे मम्मी ने ये बोल दिया, मेरा टेंशन आ गया, मैं कैसे करूं भक्ति. ओ मेरे साथ में ये प्रॉब्लम आ गई, भक्ति कैसे करूं. छोटी सी मम्मी रोक देती है चीजें और पापा रोक दें और आपकी भक्ति खत्म हो जाती है. Because your faith is so weak, your determination is so weak, your enthusiasm is so weak, your spiritual life is so weak, your spiritual strength is so weak. And why it is weak? Because Ayaram Gayaram, you come just for attendance and not for real knowledge. So, and not to implement that knowledge in your life. Here Mahaprabhu is saying, I have no other desire other than the service of Krishna. Hearing Katha is also service to Krishna. Shravan Kirtan Smaran, you are hearing service to Krishna. You are giving your ears to Krishna. Krishna Katha. That is Seva. Please instruct me accordingly. Then Prabhu Bale, Maya Moro na kare Prakash, Hena Diksha de Yai Hana Krishna Das.
Please do not deceive me. Give me initiation, means so that I may become a servant of Krishna. This is the begging. Mahaprabhu is begging. Don't deceive. Don't mujhe ignore mat karo, because now I am come to you with the straw in my mouth. Please initiate my bhakti. Please let my bhakti start. So this is the kind of mood and the prayers one has to have while accepting a guru. Krishna Kirtana Gan